Well, after the clashes ahead of Eid in Rajasthan's Jodhpur, fresh violence was reported once again in the city on Eid. After the morning Eid prayers, a mob was seen raising religious slogans and clashed with cops. The mob also pelted stones at the police at Jalori Gate, compelling the police to resort to lathi charge. Cops sustained injuries in the clashes. Vehicles were damaged. In a crackdown on rioters, 3 people have been arrested. On Monday, a dispute started over the removal of a religious flag and installation of another religious flag at the Jalori Gate intersection. Both the groups then resorted to stone pelting and vandalism. The mob also tried to remove loudspeakers from the location. The mob vandalized property in the area. Many also sustained serious injuries in the clashes. Cops reached the spot immediately, used force to control the crowds. Lathi charge was done, tear gas shells were used. यहाँ से जालूरीगढ़ से पत्थर मारते हुए आ रहे थे। यहाँ पे 2 ट्रैफिक पुलिस खड़ी थी, उनको हमने यहाँ पे बचाया। उनको जो मारने के लगे यहाँ पे पत्थर मारते आए तो मैंने कहा ये क्या करें, उनको रोकिए। उन्होंने कोई रोका नहीं, सब पत्थर मारते आते रहे और मेरी गाड़ी के ऊपर भी पत्थर मारा। उसके बाद ऊपर से यहाँ पे इस गली के अंदर से एक लेडी खड़ी थी, उसने क्या हो रहा उसने ऊपर से मटका फेंका। जब वो इधर से निकल के पास वाली गली के अंदर गए और यहाँ पे पुलिस वालों को मारा उन्होंने। 2 पुलिस वाले ट्रैफिक वाले खड़े थे, उनको मारा। एक सुनील जी बाफना भी थे, उन्होंने उन दोनों पुलिस वालों को बचाया। जब उन्होंने वापस वहाँ पे टेलीफोन किया कि यहाँ पे पुलिस फोर्स भेजी, इस तरह से हो रहा है, उसके 3 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद यहाँ पे पुलिस आई। उसके पहले कोई नहीं आया और सब पत्थर मारते हुए निकल सके। हमारे यहाँ पे अभी जो सिचुएशन है अंडर कंट्रोल है। हमने सफिशिएंट जाब्ता लगाया हूँ। अभी हम फ्लैग मार्च के लिए भी निकल रहा हूँ। सभी प्रकार से व्यवस्था है। मुझे लगता है हम इसको ये लॉ एंड ऑर्डर स्थिति जो है बनाए रखने के लिए हम इस पे जो भी केस दर्ज होंगे उस पे हम कार्रवाई करेंगे। जो भी अगर कोई गैरकानूनी काम किया है जो जिस पे कानून के खिलाफ है उसके विरुद्ध कानून के तहत कार्रवाई की जाए। मैं यही अपील करूँगा सभी को शांति बनाए रखें। Is getting us more details on that story. Joining us from Jodhpur right now, Dev, an idea of the current situation. Internet services, I believe, continue to remain suspended. Well, the situation continues to be tense, Sneha, in Jodhpur, but it is under control. There is an uneasy calm which currently prevails in Jalori Gate area where the clashes had broken out post-midnight on May 3 during the wee hours. An internet ban currently remains in place. There is heavy police patrolling which is happening in the area. The police does not want any large gatherings of the people, and the latest that we have received is that the Rajasthan Chief Minister has cancelled all his birthday plans. Today is his birthday as well, so he has cancelled all his birthday plans, and an urgent meeting has been called at the Chief Minister's office to discuss the situation currently prevailing in Jodhpur. In fact, senior police, including the Director General of Police of Rajasthan, has also been summoned. He will be present at the meeting where the entire situation in Jodhpur can be reviewed. Neha. Meanwhile, Dev, these are allegations that are flying thick and fast. The BJP says that Pakistan flag was put up by members of a particular community. The Congress is saying it was a religious flag. Who started all of this? How did these clashes take place? What did the government do? What did the administration do after clashes were reported last night itself? These are questions that need serious answers. Well, Sneha, things are under purview and are in the realm of the investigations that are supposed to be considered by senior police officials. But I can tell you that the information that we have is that around 2 days ago, on the occasion of Parshuram Jayanti, there were several flags which were put up, saffron flags which were put up, and today is Eid. So some of the people from the minority community in Jodhpur wanted to, hoist green color flags out there. That is, and allegedly, this is the allegation which has been doing the rounds, that some of the saffron flags were removed, and thereafter the green colored flags were hoisted in their place, and that is how the entire clash began. The truth is completely yet to be, the district administration is yet to come out with a complete picture of what actually happened, how the clashes ensued, but this is what we have been gathering on the ground. The police has been trying to maintain calm out there. The situation remains tense and volatile right now, but it has gotten better than it was
post midnight. Neha? They be with us. Just coming back to you for more on that. We're talking about Jodhpur on the boil, but there's no end to politics. Well, we did see politics break out after violent communal clashes in Rajasthan's Jodhpur on the occasion of Eid. The BJP is hit out at Ashok Gehlot government for the clashes that broke out between two communities on Eid, calling the cops irresponsible. The mayor called out the Congress government, accusing them of fueling communal tensions. Congress netas, while speaking on the communal clash, called it a small issue, saying it could have been resolved easily. Rajasthan Chief Minister Gehlot appealed to maintain peace in the violent city area and has urged to maintain law and order. राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री के गृह जिले जोधपुर में जिस प्रकार से जालोरी गेट में सांप्रदायिक हिंसा और तनाव फैला और उसको फैलाने दिया गया, इसके पीछे का कारण केवल इंटेलिजेंस फेलियर है या तुष्टीकरण की राजनीति में लीन हुई सरकार का संपूर्ण फेलियर है? ऐसी घटनाएं कब तक चलती रहेगी राजस्थान में, इसका जवाब भी अशोक गहलोत की सरकार को और कांग्रेस पार्टी को देना होगा। जोधपुर में स्थिति कंट्रोल में है और जो जिस तरह से दंगा हुआ ये तय कर लेना चाहिए, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कांग्रेस, बीजेपी, किसी का कार्यकर्ता हो, किसी जाति धर्म का व्यक्ति हो, दंगा फैलाने का, दंगा भड़काने का, दंगा करने का किसी को हक नहीं है। स्थिति कंट्रोल में है, सख्त कार्रवाई करेंगे। पुलिस वहाँ पर मौजूद है और किसी भी कीमत पर किसी भी दंगाई को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी दंगा फैलाने का हक नहीं है। आमने सामने लोग हुए, इसमें कोई दोहराई नहीं है, दंगा भड़का है। और जिन लोगों ने ये कार्रवाई की है, जो जिस तरह से प्लान वे में आज आखाती है, हिंदुओं का बड़ा त्योहार है, ईद भी है, मुसलमानों का बड़ा त्योहार है, सबकी जिम्मेदारी है अमन चैन और भाईचारे से रहने की। अशोक गहलोत जी के कांग्रेस के शासन में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है और खास तौर पर जो अपीजमेंट की राजनीति इन्होंने शुरू की है, उसी का नतीजा है कि इस तरीके से धर्म के नाम पर या किसी भी समारोह के नाम पर स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति पे झंडा लगाना और परशुराम जी के झंडे उतारना, उसके बाद लगातार जिस तरीके से करौली की घटनाओं के बाद जो घटनाएं सीक्वेंस से हुई, एक तरफ तो सरकार बैन करती है रामनवमी के जुलूस को, 144 इम्पोज करती है 17 जिलों में और लोगों पर 107 और 16 की कार्रवाई करती है, और दूसरी तरफ पीएफआई को परमिशन देती है। तो ये अपीजमेंट के कारण ये हौसला इस तरीके के जो अराजक तत्व है उनका बढ़ा है। देखिए, कहीं भी दंगा नहीं होना चाहिए और दंगे को रोकने के लिए मेरी अपील है, वहाँ के जितने भी लोग हैं, इससे कुछ लोगों को लाभ हो सकता है, लेकिन दंगे से समाज का, प्रदेश का और देश का बड़ा नुकसान होता है। और हमारे देश की संस्कृति रही, हम मिलके रहते हैं और ईद के दिन ये त्योहार ऐसा है, गले मिलने का है, एक दूसरे के करीब आने का, एक दूसरे से बातचीत का है। इसलिए जो दंगा हुआ है मैं उसकी निंदा करता हूँ। वहाँ पे किसी ने दंगा नहीं भड़काया था। जो पत्रकार थे वहाँ पे वो निकल रहे थे, उस समय रात को भजन संध्या थी। वो अंदर से जब बाहर आए हैं, उससे पहले दोपहर में पुलिस वालों ने उनको कहा है कि यहाँ पे परशुराम जयंती के और वो है जालोरी गेट चौराहे पे आपने भगवे झंडे सजाए हुए हैं। उन्होंने सारे उतारे हैं कि कल नमाज का दिन भी है और ईद भी है, इसलिए ये झंडे हटा देते हैं। और वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी दंगे भड़का रही थी, उनको शर्म आनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने वो झंडे दोपहर में हटा दिए ताकि चौराहे पे जो है वो कोई ऐसी बात नहीं रहे। The investigations continue in this matter as the blame game also continues. Dev Ankur continues to be with us. Dev, like we said, the BJP is accusing the Congress of allowing this sort of violence to break out. The Congress says that this environment has been created by the BJP as far as the loudspeaker debate and the controversy, not just in Rajasthan, but in different parts of the country like UP is concerned as well. Well, Sneha, clearly the Rajasthan state BJP chief went on record mentioning that during a press conference in Madhya Pradesh that if BJP comes to power in Rajasthan, then in Rajasthan too the loudspeakers will be removed. Now, what has happened is that Rajasthan, which was earlier considered largely a peaceful state, there have been a series of communal clashes in the recent times. Last month there was the Karoli communal clash which erupted on the occasion of Nav Samvatsar or the Hindu New Year. Thereafter, the Congress had accused the BJP, mentioning that
the national BJP president JP Nadda were to visit Rajasthan, and that is why the BJP had prepared the ground for communal clashes. And Rajasthan Chief Minister, in fact, Ashok Gehlot, went on record mentioning that these kind of things will keep on happening. The BJP has gotten into election mode. The BJP had hit back, claiming that the violence had erupted because of the intelligence failure of the administration which worked under the Rajasthan government. So there have been a lot of accusations and counter allegations which have been flying thick and fast. The elections in Rajasthan are will be happening next year, and report that clearly seems that a lot of made at trying to reap political benefits out of clashes, which is really They be with us. Just come back to you for more on that. Meanwhile, Randeep Singh Surjewala, the chief spokesperson of the Congress party, has responded to what has happened in Jodhpur in Congress-ruled Rajasthan. Listen in. भारतीय जनता पार्टी जहां जहां चुनाव होगा, आप समझ लीजिए, अब उत्तर प्रदेश में कोई हिंसा नहीं होगी क्योंकि वहां चुनाव खत्म हो चुका। अब उत्तराखंड में कोई हिंसा नहीं होगी, कोई दंगे नहीं होंगे, कोई भड़काऊ बयानबाजी नहीं होगी क्योंकि वहां चुनाव खत्म हो गया। अब अगला टारगेट जो है वो राजस्थान है, कर्नाटक है और धीरे धीरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। अब जब तक यहां चुनाव नहीं होंगे, यहां हर रोज हिंदू मुसलमान का दंगा होगा, हर रोज कोई ना कोई भड़काऊ बातें कहेगा और हर रोज झगड़े करवाएगा। मैं इस वक्त खड़ा हूँ जालोरी गेट चौराहे पर। आप देख सकते हैं कल रात इसी जगह पर दो समुदाय का गुट था। उस गुट में झंडा लगाने को लेकर, लाउड स्पीकर को लेकर विवाद हुआ है, जो तनाव इतना बढ़ चुका है कि पत्थरबाजी हुई, लाठीचार्ज हुआ और लाठीचार्ज होने के बाद आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। इस समय मैं इस चौराहे पर खड़ा हूँ, यहाँ पर RSC तैनात है और आज सुबह भी इसी जगह पर जैसे ही नमाज अदा करके लोग बाहर निकले तो इन्होंने गाड़ियाँ के कांच फोड़े, तकरीबन 15 से 20 गाड़ियों के कांच फोड़े हैं और इस समय तनाव का माहौल है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पुलिस जाब्ता लगा रखा है। तकरीबन 3 से 4 पुलिस कर्मियों के चोटें भी आई है, लेकिन प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें भेज दिया गया है। इस दंगे पर जहां झंडा लगाया गया था, अब उस पर प्रशासन द्वारा तिरंगा झंडा लगा दिया गया है। अब इस समय पुलिस जाब्ता तैयार है, हर जगह तैनात है। शहर में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। जिस तरीके से कल रात और आज सुबह जो शहर में जिस तरीके से हुड़दंग हुआ है, उसको लेकर तनाव का माहौल है। कमिश्नर, DCP ईस्ट वेस्ट दोनों मौके पर हैं और मोर्चा संभाले हुए हैं। Getting the details of the clashes that broke out in Jodhpur, this comes, remember, at a time when two different areas in Karauli and Alwar in Rajasthan had seen clashes between two communities. We now have these clashes being reported on Eid day from Jodhpur city. Pictures of the violence that broke out last night and spilled over today, essentially, where two communities clashed over installation of the loudspeaker and also a flag, a religious flag that was hoisted. To bring the situation under control and as a precautionary measure, internet services have been suspended in this area. The police say that the situation now is under control, but not before protesters were lathi charged and tear gas shells were used to bring the crowds under control. There was arson, there was violence in which cops were also injured. We're putting out all of those pictures for our viewers from Jodhpur city in Rajasthan. Meanwhile, a political blame game as expected. वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूँ कि हमारी राजस्थान की और मारवाड़ की परंपरा रही है। सभी समाज के, सभी धर्मों के लोग हमेशा हर त्योहारों के अंदर भी प्रेम से, भाईचारे से रहते आए हैं। मैं अपील करना चाहूँगा कि तमाम लोग शांति बनाए रखें और तनाव समाप्त करें, क्योंकि ये तनाव हिंसा का माहौल हित में नहीं है जोधपुर वासियों के भी। और जो लोग फिर भी ऐसे कोई तत्व, एंटी सोशल एलिमेंट आते हैं तो सख्ती से निपटा जाएगा। ये मैंने पुलिस को निर्देश दे दिए हैं और समय रहते हुए मैं समझता हूँ कि सबको समझना चाहिए कि सब मिलजुल करके जो हमारा भाईचारा बनाए रखें। ये मेरी बहुत मार्मिक अपील है। जो मैंने सुना है कि वहाँ पर
कुछ लोगों ने और कुछ नेताओं को मैं अपील करना चाहूँगा, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी नेता हो, कि जो राजनीति में कार्यकर्ता है या नेता है, जनप्रतिनिधि है किसी पार्टी का हो, पहला उसका धर्म होता है कि कैसे वो अपनी पार्टी के लोगों को, अपने मिलने वाले लोगों को, सबको संदेश करे कि किसी भी कीमत पर झगड़ा नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि इस परंपरा का निर्वहन करने के लिए तमाम पार्टी के लोग एकजुट रहेंगे, ये मैं उनसे अपील करना चाहूँगा। Coming in from Ashok Gehlot, the Chief Minister of Rajasthan, Sharad Kumar, is also with us. For more on that, Sharad, इस समय स्थिति कैसी है? लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, सरकार का ये कहना है कि अभी अंडर कंट्रोल है। ग्राउंड जीरो में क्या देख रहे हैं? इंटरनेट सर्विसेज अभी भी सस्पेंडेड है, प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं कि फर्दर क्लैशेस ना हो। देखिए, इंटरनेट सर्विसेज आगे भी सस्पेंडेड रहेंगे फर्दर ऑर्डर तक। अभी चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने, आज उनका बर्थडे था, जन्मदिन था, और आज उनके घर पर मेला लगने वाला था, लेकिन सारे कार्यक्रम आज जन्मदिन के बर्थडे का उन्होंने कैंसिल कर दिया है और सीएमओ ऑफिस में चले गए हैं, जहां पुलिस के अधिकारियों और सचिवों के साथ बैठक कर रहे हैं जोधपुर हिंसा को लेकर कि कैसे वहाँ पर क्या हुआ है, कैसे काबू में पाया जाए। फिलहाल ग्राउंड पर शांति है, लेकिन बड़ा सवाल है कि ईद के दिन, त्यौहार के दिन, खुशियों के त्यौहार के दिन, आपसी भाईचारा और विश्वास के त्यौहार के दिन, जिस दिन सुबह कुछ मुस्लिम युवकों ने पथराव किया है, उसे लेकर वहां पर तनाव है। और उसी तनाव को देखते हुए गजेंद्र सिंह जो यूनियन मंत्री हैं, वाटर रिसोर्सेज मंत्री, वो गए थे और वहाँ पर कुछ लोगों ने नारेबाजी भी की। हालांकि उन्होंने कहा कि आप यहाँ से डिस्पर्स हो जाइए, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। लेकिन कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि क्या ईद के दिन इस तरह का पथराव करना उचित था? और उससे भी बड़ा सवाल है, क्या इस देश में मुसलमानों को अपना त्यौहार मनाने का हक है कि नहीं? दिवाली में हम देखते हैं कि 10-10, 15 दिन पूरे बाजार में सजावट होती है और 15 दिन तक लोग हिंदू जश्न मनाते हैं। और ईद के दिन वो अपना झंडा लगा रहे थे, लाउड स्पीकर लगा रहे थे, और कुछ युवकों ने वहाँ पहुँचकर झंडा उतार दिया, लाउड स्पीकर उतार दिया। उसके बाद ये वीडियो वायरल हुआ और मैंने आपसे कहा कि इमोशनल लोग हैं, अनएम्प्लॉयड लोग हैं, लंपेन लोग हैं, उन लोगों ने पथराव किया। बड़ा सवाल है कि किस तरह से ये घटनाएं घटित होती है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन रहता कहाँ है? जब देश में इतना विस्फोटक माहौल है, इस विस्फोटक माहौल में भी आप सबको पता है कि अक्षय तृतीया है आज। अक्षय तृतीया सबसे पवित्र दिन माना जाता है हिंदुओं के हिसाब से, और राजस्थान में तो सबसे ज़्यादा शादियाँ, पूरे साल में जितनी शादियाँ होती है उसका 1/3 आज ही हो जाती है। आप ये समझिए, इतना शुभ दिन है आज हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। उसके अलावा परशुराम जयंती भी है, उसी दिन ईद पड़ी है। होना तो चाहिए था कि कितना बड़ा मौका था कि हिंदू मुसलमान मिलकर इसको सेलिब्रेट करते, लेकिन पहले से ये था कि ये तनाव हो सकता है क्योंकि इस तरह का विस्फोटक माहौल इस देश में बना हुआ है। उसके बाद भी प्रशासनिक लापरवाही से, एडमिनिस्ट्रेशन के फेल्योर से पत्थरबाजी हुई है, जिससे हिंदुओं में रोष है और मुसलमानों में रोष है कि क्या एक दिन अपना वो ईद नहीं मना सकते? क्या ईद का झंडा नहीं लगा सकते? क्या ईद के लिए लाउड स्पीकर नहीं लगा सकते? क्या ये उनका देश नहीं है? इस तरह के अगर उनके झंडे और लाउड स्पीकर लोग अपने हाथ कानून में लेकर उतारेंगे बाजार में और वीडियो वायरल होंगे, तो क्या इस तरह से हिंसा को हम रोक पाएंगे? अगर नहीं रोक पा रहे हैं तो क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन फेल्योर नहीं है? क्या इंटेलिजेंस फेल्योर नहीं था सरकार का? क्योंकि सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र जोधपुर से, वहीं से हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आते हैं। फिलहाल भले ही शांति है, लेकिन जिनके गाड़ियां टूटी है, जिनके शोरूम पे पत्थर पड़े हैं, जिन्हें चोट लगी है, वो कभी नहीं भूल पाएंगे कि वो पत्थर चलाने वाला मुसलमान युवक था। और वो मुस्लिम युवक जो साल भर से ईद मनाने की तैयारी करते हैं, वो कभी नहीं भूल पाएंगे कि कैसे हमारा झंडा उतार दिया गया, कैसे हमारा लाउड स्पीकर उतार दिया गया। हमें तय करना है कि हम देश को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं, क्या हम साथ रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं। कानून व्यवस्था अगर इस तरह के हालात रहें तो बिगड़ते रहेंगे। पुलिस जो है उसे कंट्रोल करना सीखना होगा, क्योंकि इस तरह का माहौल में जब हर तरफ ऐसा माहौल है तो वहाँ पर पुलिस की मौजूदगी होनी चाहिए थी। आज जब रात को इतना बड़ा कांड हुआ है तो सरकार, अभी जैसे ही ईद की नमाज 8:30 बजे की ख़त्म हुई, प्रशासन की तरफ से मैसेज आया कि पीसफुल नमाज ख़त्म हो गई है, और थोड़े ही दूर पर जाकर पथराव हो जाता है। और वो पथराव
कि जो वीडियो है वो वायरल हो जाते हैं। वहाँ पर इंटरनेट बंद है मगर ब्रॉडबैंड चालू है। ज़्यादातर लोग अपने घरों में आजकल ब्रॉडबैंड लेकर काम कर रहे हैं, इसलिए वीडियोज़ को वायरल करने में इंटरनेट बंद करने से कोई दिक्कत होती नहीं है। वहाँ से सारे फीड आ ही रहे हैं, आप देख ही रही हैं स्नेहा। तो वहाँ पर जो माहौल है फिलहाल शांतिपूर्ण है, मगर हमारे साथ वनिता सेठ जो है जोधपुर की मेयर हमारे साथ अब इस समय फोन लाइन में है। वनिता सेठ, इस समय सिचुएशन जोधपुर में कैसा है और जो हुआ है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? उसके लिए एक बात मुझे बताइए, सुबह 6 बजे कलेक्टर और कमिश्नर से हमारी बात हुई थी। हमने ये कहा कि हमारे सारे लोग यहाँ से हट गए सिर्फ इसलिए कि 1 महीने से उन्होंने रोजा रखा है, वो अपनी नमाज अदा कर दें। उसके बाद रात 9 बजे वो नमाज पढ़ने के बाद में जालोरी गेट से निकलते हैं और जितनी गाड़ियां खड़ी हैं, जितने कांच के शोरूम हैं, उन सबको उन्होंने पत्थर मार के तोड़ा। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है ना, ये तो पुलिस ध्यान रखेगी। और इसका मतलब वो टारगेट लेके थे, वो नमाज पढ़ने आए, उसके साथ भी वो पत्थर लेके चल रहे थे। और आप पत्थर देखिए कि एक ही तरह के बने हुए हैं और उनपे स्काई ब्लू कलर किया हुआ है। दूसरी बात ये हुई कि शहर में मेरे पास कंप्लेन आई, जब मैं वहाँ गई तो पता चला हमारे सिटी के अंदर एक कबूतरों का चौक है, वहाँ एक महिला अपनी बच्ची को लेके खड़ी थी, उसके जाते हुए पत्थर मार दिया। भाई क्या मजाक है, कोई अपने घर के बाहर खड़ा नहीं हो सकता। और अभी अभी आया है शहर में 3-4 जगह हैं जहाँ कहीं पे दुकान तोड़ दी है, जो बंद दुकान है, किसी के ऊपर हमला कर दिया है। अब सिटी में कर्फ्यू लगाना पड़ा है। तो हम तो रात से कह रहे थे कि ये प्री प्लान्ड हो रहा है, आप इनको रोको। ये नमाज के बाद कौन पत्थर चला रहे हैं, ये तो पुलिस देखेगी ना कि ये कौन कर रहे हैं। वनिता सेठ, ये कहा जा रहा है कि एक इस्लामिक फ्लैग जो रिलीजियस फ्लैग है वो हरा झंडा लगाया गया और उससे रिप्लेस किया गया भगवा फ्लैग से, क्या ये सच है? बिल्कुल किया गया, बिल्कुल सच है। सवाल ये कांग्रेस उठा रही है कि ऐसा क्यों किया गया, क्या ये जानबूझ के किया गया, माहौल बिगाड़ने के लिए किया गया? ये कांग्रेस को उठा रही है सवाल। ये कांग्रेस उठा रही, तो कांग्रेस को ये पूछो कि उस समय उसका नाम लेते हैं जो ईदगाह से पत्थर चल रहे थे, वो कौन कर रहा था? तो पत्थर चलाने का रीजन, पथराव करने का रीजन क्या था? जालोरी गेट के चौराहे पे भगवा लगे हुए थे, वो दोपहर में पुलिस के साथ मिलके सारे परशुराम जयंती के जो ब्राह्मण थे उन्होंने हटाए हैं कि कल इनका त्योहार है, इसलिए ये अपने तरीके से इस सर्कल को सजा लें। दोपहर में कल 12 बजे सारे झंडे वहां पे हटाए गए हैं और किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं, खुद ने हमने हटाए। मतलब हमसे मतलब है पुष्करना समाज ने, और जो ब्राह्मण थे परशुराम जयंती का, उन्होंने कहा कि क्योंकि इनका भी त्योहार आ रहा है, उन्होंने अपने हटा दिया, हमने मना लिया। एक झंडा लगा हुआ था, उससे क्या दिक्कत है मुझे ये बताइए, नंबर 1। दूसरी बात, उन्होंने जो स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति लगी हुई थी उसके चारों तरफ ब्लैक कलर की टेप लगाई। सबसे ज्यादा इशू झंडा नहीं है, ये है ये उनके मुंह के ऊपर ब्लैक टेप लगाने का क्या मतलब है? लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगी और हम कनेक्ट करेंगे कांग्रेस के किसी स्पोक्स पर्सन के साथ भी। पहले कांग्रेस के नेताओं का ये कहना था कि ये जो माहौल बना रहे हैं, डर का माहौल जो बनाया जा रहा है, लाउड स्पीकर्स को लेके ऑब्जेक्शन है, हरे झंडे को लेके ऑब्जेक्शन है, ये माहौल बीजेपी बना रहा है। जी प्लीज, बीजेपी ने कल कोई नहीं था, बीजेपी का कोई नेता उस समय मौजूद नहीं था। रात को 12 बजे से कंटिन्यू मैं ही थी। 3 बजे के बाद में सूर्यकांता जी जो सिटी में ही रहती हैं, विधायक हैं, वो हैं, वो भी उन सबके बुलाने पे 7 पत्रकारों को चोटें आई हैं। आप क्या मजाक कर रहे हो? इसमें कहाँ बीजेपी है? पत्रकारों को मारा है उन्होंने, लाठीचार्ज किया पुलिस ने, और पत्थर मारे हैं मुस्लिम समुदाय ने। इसमें बीजेपी ने क्या कर लिया और बीजेपी का कौन सा नेता है ये बता दे। ये कांग्रेस का कहना है। वनिता सेठ, ये सवाल कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस कुछ भी कह दे, आप अपनी प्रशासन को नहीं संभाल पाए, आपका एडमिनिस्ट्रेशन फेल गया, इसका मतलब आप बीजेपी के दोष दोगे? बीजेपी का कौन सा नेता वहां थे रात भर में? आज सुबह अब आए हैं जब लोगों ने ये शिकायत की है कि भाई बीजेपी वाले आ क्यों नहीं रहे हैं, हमारी कारें तोड़ दी हैं, हमारे साथ मिसबिहेव हो रहा है, तब हमारा जिलाध्यक्ष, मंत्री और सब आए हैं। जबकि रात को ये तय हो गया कि जब मैं वहां पे हूँ किसी को आने की जरूरत नहीं, शांतिपूर्ण रखना है, इनकी नमाज सुबह हो जाए। हम तो इतना कोऑपरेट कर रहे हैं और उसके बाद बीजेपी पे दोष दिए जा रहे हैं। क्या मजाक बना रखे हैं? बने रहिए वनिता सेठ हमारे साथ। हमारे सीनियर पत्रकार शरद कुमार हमारे साथ अलवर से हैं। शरद, आप पूछना चाहेंगे? वनिता सेठ मेयर जोधपुर के हमारे साथ फोन लाइन पे है। जी
वनीता जी, ये जो दृश्य वायरल हो रहे हैं, सारे चैनलों पर चल रहे हैं, झंडा उतारा जा रहा है उनका और लाउड स्पीकर खींच कर उतारा जा रहा है, वो कौन लोग उतार रहे थे और ये वीडियो कहाँ का है? ये रात की 1 मिनट आप बात सुनिए, ये अभी सुबह की घटना है। ये अभी क्या हुआ है कि रात को इन्होंने के लिए सर्कल खाली किया हुआ था, वहां पे इन्होंने क्या किया कि जो एक स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति थी उसके ऊपर टेप लगा दी, मुंह के ऊपर काली टेप, और उसको ढक रहे थे। तो आपके कोई जर्नलिस्ट वहां से निकल रहे थे, वो उसमें जी टीवी वाले भी थे, उसमें फर्स्ट इंडिया न्यूज के भी, यहाँ आप उनसे बात कर सकते हैं। उन लोगों ने वहां पे रुक के कहा कि भाई ये क्यों कर रहे हो ऐसे। उन्होंने उस समय पत्थर मारने शुरू कर दिए। ये लाउड स्पीकर वगैरह पुलिस के प्रेजेंस में लगे हैं, तो लाउड स्पीकर की कोई इशू नहीं है, ये जानबूझ के इशू बनाया जा रहा है। रात को कोई लगाने का तुक नहीं था और हमने तो सर्कल खाली करवाया था। पूछ रहा हूँ कहाँ के है उतारते हुए झंडे और लाउड स्पीकर? अब वो कहाँ, वो तो आपके पास है, हमारे यहाँ तो नेट सुबह से बंद है, मैंने तो कोई वीडियो ही नहीं देखा। मैं तो मौके पे थी, वो घटना आपको बता रही हूँ। आप देख सकती हैं लाउड स्पीकर उतारा जा रहा है, झंडे उतारा जा रहा है। अच्छा, तो मेरे सिटी में जो लाठियां चल रही हैं उनको छोड़ के मैं आप चैनल देखूं? क्या मजाक कर रहे हो आप? पत्रकार हो आप भी, समझो। आपके 7 पत्रकारों को चोटें आई हैं, पुलिस ने लाठीचार्ज में मारा है। और वहाँ पे जितने पत्थर पड़े हैं ना, उनके साइज उनसे फोटो मंगा के देख लो। यही तो कह रहे हैं कि रात में जो कांड हुआ है पुलिस ने, सुनिए, रात में जो कांड हुआ उसमें कोई ऐसा नहीं था। रात में सिर्फ उनकी तरफ से ही आपको पत्थर मारे गए इधर, और जब पत्रकार गए उन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। और उन्होंने कहा है कि हम कवरेज करने आए तो भी बुरी तरह से मारा। मेरे पास जब रात को 1 बजे फोन आया तब मैं गई हूँ, क्योंकि मैं पास में ही रहती हूँ। बाकी हमारे सब नेता दूर से, उनका एक फोन आया कि एक बार जाके देखो, क्योंकि कुछ कार्यकर्ता वहाँ गए हैं, क्या मैसेज है। तब वहाँ पता चला कि सिटी के लोग वहाँ से निकल रहे हैं 12 बजे रात को, और वो उन्होंने पत्थर मारने शुरू कर दिया और पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। जो पत्थर मार रहे हैं उनको लाठीचार्ज नहीं किया, आपके पत्रकारों को किया, और जो पास में खड़े थे उनको मारा है। और अभी की सिचुएशन ये है, सिटी के अंदर हर गली में उसका नाम देते उन्होंने हुड़दंग मचाया है, और उसको ये है कि सिटी के अंदर अभी कर्फ्यू लगाना पड़ा है। वनीता सेठ, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यू हर्ड फ्रॉम द मेयर ऑफ जोधपुर। Sharath, I'm thanking you also for the moment. We have some more news that's just coming in from Rajasthan. Let's go straight to that. Authorities say the situation is tense but continues to be calm right now, and that things are under control, but it could go out of hand. Remember, the situation went from bad to worse this morning after there were allegations that a loudspeaker was being removed by sections of a particular community, also over hoisting of a particular flag, a religious flag. There were clashes that broke out in Jodhpur. There were tensions last night, and clashes broke out after the prayers, Eid prayers this morning. There have been reactions that have come over from political leaders across the country. We've also heard from the Chief Minister of West Bengal, who's spoken about the need for peace. Ashok Gehlot, the Chief Minister of Rajasthan too, has said that the need of the hour is to maintain peace and ensure that law and order does not get disturbed.